Hello everyone. Today I am very excited to talk to you about a buzzword. मैं गारंटी देती हूँ कि जब मैं इस बज़वर्ड के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो इस वीडियो के एंड तक आप अपने आप से एक बार तो जरूर कहेंगे कि काश मुझे इस वर्ड के बारे में, इस फेनोमेना के बारे में पहले पता होता. I would have secured my emotions. I would have secured my emotions, my relationships with others, and I would have grown much better in all my relationships and moved ahead in life. So, with this guarantee, let me tell you what the word is. However, the word is not that great, but it is very important for all of us to know about this phenomena. And that word is gaslighting. My dear friends, America's oldest dictionary, Webster, has named gaslighting as the word of the year in 2022. अब ऐसा क्यों हुआ होगा कि गैसलाइटिंग इस वर्ड को 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि लाखों लोग, आपके और मेरे जैसे लोगों ने इस वर्ड को गूगल पे सबसे ज्यादा 2022 में सर्च किया. और वो इसलिए कि शायद उनकी जिंदगी में वे लोग गैसलाइटिंग एक्सपीरियंस कर रहे थे, या तो फिर ये जानना चाहते थे कि गैसलाइटिंग के जब उनके साथ हो रहा है तो उसके साथ वो कैसे डील करें. So, I really want all of you to understand this phenomena. Let me begin with telling you what gaslighting actually looks like. Gaslighting is basically an emotional abuse done by somebody which is concentrated to tell you that your reality is not true. Let me give you some examples. The person might totally deny whatever you are trying to tell them, even when you have the proof. That person will actually accuse you of doing the wrong, which actually you know that they have done themselves. These people will make everybody against you. Those people whom they know will actually support you when you need. They will try to put all those people against you. The people who are gaslighting will actually tell you that you are crazy. You have lost your mind. And they will also make you not trust your own reality. That means you will be really questioning yourself, your self-intuition again and again. And what does this lead to? Last but not least, you will find yourself searching for proofs constantly, because now it has become a habit for you to find out proofs and show it to them. See, this happened. See, look at this happened. And still, you know what? That person is never going to agree to whatever you say, to whatever kind of proofs you get to them. And then you become so anxious. So my dear friends, gaslighting is a very cruel thing to do. It is a mental manipulation that is done to a person which shatters that person's emotions and belief in self totally. If you all have seen a famous Bollywood movie, दृश्यम, अगर दृश्यम आप सब लोगों ने देखी है, फेमस मूवी है अजय देवगन की, जिसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर मर्डर के रिलेटेड सारे सबूतों को, सारी रियलिटीज को इस तरह बदला, इस तरह नैरेटिव को चेंज किया, इस तरह मैनिपुलेट किया कि पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन टीम सब गुमराह हो गई एंड अल्टीमेटली वो उस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए. इफ यू रिमेंबर दैट. सो मैनिपुलेशन करता, इस तरह का मैनिपुलेशन आपके साथ कौन करता है? द पर्सन हु इज क्लोजेस्ट टू यू, डोंट दे? जो आपके सबसे करीब है वो लोग आपको गैसलाइट करते हैं. द पीपल हु हैव पावर ओवर यू, किसी तरह का पावर है उनका आपके ऊपर. नाउ इट डजंट नेसेसरली मीन दैट दोज पीपल आर फ्रॉम योर हाउस और योर क्लोज रिलेटिव्स. इट कैन ऑल्सो बी एट योर वर्क प्लेस, योर बॉस, योर कलीग्स. It can also be the society as a whole. Every time you have so many examples that people in society are trying to demonstrate their power by putting down somebody, don't they? Gaslighting happens usually in politics also. A very powerful example of gaslighting that has happened in global politics was during Corona. When Corona was just spreading all over the world,
people had newly started calling it Wuhan virus. And that particular time, Chinese government had totally denied all the proofs that the whole world was trying to put it out there that see, this virus is coming out from China. This China is responsible for virus, and that's why we are calling it Wuhan virus. And China repeatedly till the end kept denying the fact that COVID was the birthplace, that China was the birthplace of COVID. Yes, we all know about it. So there are a number of examples, but now I want to focus on explaining more to you about gaslighting. Gaslighting involves three major steps. The first step in gaslighting is total denial of reality. जब आप किसी को उनकी गलती बताएंगे तो वो पूरी तरह से आपके उस रियलिटी को खारिज कर देंगे, जैसे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, दे में से तुम पागल हो, ऐसा तो कभी मैंने कहा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो मैंने कहा ही नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, तुम क्या कह रही हो. इस तरह से आप जो भी उनको कहेंगे उसका रिप्लाई आएगा डिनायल. वो आपके किसी भी बात को अग्री नहीं करेंगे, किसी भी बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे. सेकेंड स्टेप ऑफ गैसलाइटिंग इज दैट पर्सन whom you are telling, जिसको आप बता रहे हैं कि उनकी गलती है, वो उल्टा आप पे अक्यूज करेंगे कि पूरी गलती आपकी है. They will tell you that whatever you are feeling in that particular situation is totally wrong. आपके फीलिंग्स ही गलत है. अगर आप उन्हें बताते हैं कि इस तरह से उनकी वजह से आपको बुरा लग रहा है, आप बहुत दुखी फील कर रहे हो, तो वो आपको कहेंगे जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो तुम्हें बुरा लगने की क्या जरूरत है. और तुम जो भी फील कर रही हो, इनसिक्योर फील कर रही हो, बुरा फील कर रही हो, इट डजंट मैटर बिकॉज इट इज बेसलेस. जब कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं है तो उसके बारे में कुछ फील करना भी गलत है. एंड द थर्ड स्टेप टू गैसलाइटिंग इज कि वो सिर्फ एक इंसिडेंट तक नहीं रहेगा. जब वो इंसान देखेगा कि आप धीरे धीरे उनकी किसी गलती को बार बार पकड़ रहे हैं, तो वो आपको कंटिन्यूअसली गैसलाइट करेंगे, किसी एक टॉपिक पे नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स वो पकड़ेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आप में क्या कमी है, आप में क्या गलती है. और आपका खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है वो इतना कम हो जाएगा कि आप खुद के थॉट्स, वैल्यूज, बिलीव्स, रियलिटी को क्वेश्चन करने लगेंगे कि ऐसा तो हुआ था, मैंने उनको प्रूफ भी दिया था, लेकिन दैट पर्सन इज टेलिंग मी दैट आई एम रॉन्ग. लेट मी जस्ट चेक माई प्रूफ्स, लेट मी गो बैक टू व्हाट आई हैड सीन. तो आप खुद को ही ट्रस्ट करना कम कर देते हैं. एंड देन इस तरह के लेवल तक वो आपको पहुंचा देते हैं, इस तरह का मेंटल, एक्चुअली यू नो व्हाट, गैसलाइटिंग इज द वर्स्ट केस ऑफ मेंटल अब्यूज because the person becomes so shattered, the person grows so much of disbelief in himself or herself that it is so difficult for them to even share it with someone कि उनके साथ क्या हो रहा है. क्योंकि गैसलाइटिंग ऐसे लोग जनरली करते हैं who have a very good name in the society, who have certain kind of position in the society. मैंने आपको कहा gaslighting is done by people who want to have power, right? तो ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में कोई ऐसा है जिन पे सब डिपेंडेंट है, who may be a bread earner for the family. वो इंसान गैसलाइट कर रहा है, और जब आप कहेंगे कि मैं सबको बताने वाली हूँ कि आपने इस तरह का बिहेवियर किया है, तो वो आपको कहेंगे जाके बोलो, कोई बिलीव नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर. और जब आप ये सुनेंगे तो आपको भी ये समझ में आएगा कि द गैसलाइटिंग हु इज डूइंग दैट इज सच अ पावरफुल पर्सन. ही हिमसेल्फ नोज ही इज डूइंग इट रॉन्ग, बट वो डिनाई कर रहे हैं और उन्हें पता है दैट ही इज एट अ पावरफुल प्लेस जहां आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बहुत लोगों को पूरी जिंदगी निकल जाती है इस तरह का डोमिनेशन फेस करते हुए, इस तरह का गैसलाइटिंग फेस करते हुए, और उन इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतने एंशियस रहते हैं जिंदगी भर कि उन्हें पता ही नहीं ये गैसलाइटिंग है. ये इस तरह की टैक्टिस है, इस तरह का फेनोमेना है जिसमें पूरी तरह से उनको जकड़ दिया गया है. उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है. इट इज सो डेंजरस, और लोगों को ये समझ में नहीं आता अपने लाइफ के एंड तक बहुत बार. तो आज जब इस तरह के वीडियोस बन रहे हैं हमारे थ्रू, आपको ये चीजें पता चल रही हैं,
आई रियली होप कि आप लोगों को गैसलाइटिंग अगर आपकी जिंदगी में हो रहा है तो आप उसे समझ पाएंगे, उसे पॉइंट आउट कर पाएंगे, और उससे अगर डील करना है, कैसे करना है, वी आर योर लाइफ कोचेस एंड counselors are here, therapists are here to help you out with this particular situation in your life. Please don't ignore such a behavior done by somebody in your lives. Do approach therapists and coaches and get yourself out of such a situation. I wish you all the best.